Hello, beautiful souls. Welcome to our full moon manifestation video. In this video, we are going to firstly I'm going to tell you some messages that I have downloaded and some messages that I'll be channeling via tarot card. And also, I'll tell you what are the blockages that is stopping your manifestation, that is kind of like delaying if your manifestation, some of them which has not arrived yet, how you can remove them. Also, I'm going to be telling you about what are the strengths that you have in your desired reality. Let's get started. First of all, full moon is a very powerful time when you can actually manifest a lot of things that you want in life. And I have honestly manifested everything that I have in my life, purely number one via meditation and understanding the cycle of moon and moon energy. So, firstly, we will start with a little bit of prayer. So, we'll close our eyes and ask for grounding our energy so that we are calm and we are composed and we start channeling our inner messages. Now, the first message that I will be taking is what is it that you are born to do? What is it that you have to do in your desired reality? Can you just kindly give me messages? What is the desired reality for the collective that's listening? Wow. The first card that we got is the Wheel of Fortune and your desired reality. The what you're born to do is to enjoy the Wheel of Fortune and have a very stable, happy married life, fulfilled life, wherein you have the perfect balance of love and compassion and doing the work that you're very passionate about. It's filled with a lot of happiness and it is quite both the cards combination you can see. You are born for having everything. तो ऐसे में आपके लिए जो यूनिवर्स से प्लान है, आपके डिज़ायर्ड रियलिटी में आपको वो सारी खुशियाँ और साथ में एक हैप्पी मैरिड लाइफ ये आपके लिए दिया है, जिसमें आपका एक स्टेबल होम होगा, एक ब्यूटीफुल सा घर जिसमें बहुत सारी खुशियाँ है एंड इट इज़ वेरी नाइसली बैलेंस. सो 4 ऑफ द पिलर्स आर बैलेंस विच इज़ योर वेल्थ, लॉट ऑफ वेल्थ, लॉट ऑफ true love in your relationships and good health and also lot of prosperity and doing things that you love to do. तो ये है आपका व्हील ऑफ फॉर्चून. अब हम देखेंगे कि आपका जो ये डिज़ायर्ड रियलिटी है, जो आपका बेस्ट वर्जन है, जो आप जिस चीज़ के लिए पैदा हुए हो, उसको रोक क्या रहा है. व्हाट इज़ द ब्लॉकेज? व्हाट इज़ द ब्लॉकेज? ब्लॉकेज में 10 ऑफ कप्स का एनर्जी आ रहा है. सो फर्स्ट ब्लॉकेज इज यू हैव टू कनेक्ट विद गुड इमोशंस. पहला ब्लॉकेज ये है कि आप पहले तो एक खुशी के एक हैप्पी स्टेट ऑफ माइंड में रहे. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू आर इन अ वेरी हैप्पी स्टेट ऑफ माइंड एट ऑल टाइम्स बिकॉज यू अट्रैक्ट वट how you are feeling. So if you're feeling good, you attract good things, and when you're feeling low, you attract low things. Secondly, you are asked to travel more with lot of happiness and joy in your life. Like you are asked to go to new terrains, go to new places, connect with nature. और काफ़ी सारा जो आपके मन में जो चीज़ें हैं, जो चीज़ें आप करना चाहते हैं, उन चीज़ों को आप करो और उनको करने से आप खुद को ना रोको. Then you should be also focusing on something that is related to your growth. अब क्या होता है, बहुत टाइम हम जो है हमारे माइंड सेट में वो चीज़ों के बारे में ज़्यादा सोचते हैं जो कि रिलेटेड टू नॉट ग्रोथ, मतलब व्हाट आर थिंग्स दैट आर नॉट वर्किंग आउट फॉर यू. जैसे किसी से आपने डील किया इन द पास्ट और जिस इंसान ने आपके साथ राइट बिहेव नहीं किया, आपको जो डिज़र्व था वो आपको मिला नहीं, या जो आपको मिलना था, यू नो थिंग्स गो रॉन्ग इन अ लाइफ. सो व्हाट यू वर सपोज टू गेट, यू डिड नॉट गेट दैट, और somebody who was supposed to give you something they did not give you. So you're more focused on that. Maybe it is a parental figure. हो सकता है कि आपको अपने पेरेंट्स से या फैमिली मेम्बर्स भी हो सकता है जिनसे कुछ आपको डिज़र्व था वो आपको मिला नहीं, और उन सब चीज़ों पे आपका फोकस ज़्यादा है. तो दीज आर थिंग्स दैट इज़ क्रिएटिंग ब्लॉकेजेस, क्योंकि आपको उन सब चीज़ों के बारे में बोला जा रहा है कि लेट गो करें, वो पास्ट टेंस में है और वो पास्ट टेंस में रहने दें. तो ये आपका 3 ब्लॉकेज मैंने अभी तक फाइंड करा है. और क्या आपको ब्लॉकेज करे? एंजल्स काइंडली टेल मी व्हाट आर द ब्लॉकेजेस. आपको कहा जा रहा है कि आपका जो पर्सपेक्टिव है चीज़ों को लेके, उसको वर्क करने की ज़रूरत है. आप जिस सिचुएशन में हो उन सिचुएशन में
काफ़ी टाइम आपको ज़रूरत है कि एक नया सोच लाने का। जिस प्रकार आप खुद को देख रहे हो वो सिचुएशन चेंज करके इट्स इंपॉर्टेंट टू थिंक अदरवाइज यू शुड ऑल्सो बी एबल टू थिंक इन अ डिफरेंट पर्सपेक्टिव यू नीड टू चेंज योर पर्सपेक्टिव अबाउट द करंट सिचुएशन व्हाट आर द अदर ब्लॉकेजेस यू हैव व्हाट अदर ब्लॉकेजेस आर देयर वो कौन से और ब्लॉकेजेस हैं जिससे कि आपकी मैनिफेस्टेशन जो है वो स्लो हो रही है राइट नाउ। हाँ, मैं देख सकती हूँ कि आप जो हो काफ़ी वरीड हो फाइनेंशियल सिचुएशंस को लेके या मनी को लेके या समथिंग योर रिलेशनशिप विद मनी दैट नीड्स टू इम्प्रूव और प्रॉब्ली यू थिंक एवरी टाइम यू स्पेंड मनी की खर्चा कर दिया है और इतना खर्चा नहीं करना चाहिए था, अरे एक्सपेंडिचर इतना क्यों किया। तो आई सी अ लॉट ऑफ वरिंग रिलेटेड टू मनी, तो दैट वरिंग फॉर मनी इज़ समथिंग दैट इज स्टॉपिंग योर मैनिफेस्टेशन। बिकॉज जब आप मनी के बारे में वरी कर रहे हैं तो आपका जो वाइब्रेशन है वो लोअर वाइब्रेशन में जा रहा है, ठीक है। तो आप क्या कर रहे हो, लो वाइब्रेशन में जा रहे हो, ठीक है। क्योंकि आप जब सोचते हो कि आपके पास पैसे स्पेंड हो गए या पैसे कितना सेविंग में है या कितना स्पेंड आपने कर दिया है, तो उसमें क्या हो रहा है, आप स्ट्रेस में जा रहे हैं और एंग्जाइटी में जा रहे हैं। और एंग्जाइटी और स्ट्रेस का जो एनर्जी है, जो फ्रीक्वेंसी है, वो लो वाइब्रेशन है, लो फ्रीक्वेंसी है। और मैनिफेस्टेशन के लिए आपको हायर फ्रीक्वेंसी में जाने की ज़रूरत है, क्योंकि एज यू कैन सी दिस इज़ द कार्ड फॉर यू, व्हील ऑफ फॉर्चून। तो जो व्हील ऑफ फॉर्चून मतलब जो लक का व्हील है, जो फॉर्चून है वो आपके लिए है। तो सोचे जब आपके पास वो सारी चीज़ें होंगी जो आप चाहते हो तो आप कैसे फील करोगे। क्या आप उस टाइम स्ट्रेस फील करेंगे, एंक्शियस फील करेंगे, मनी को लेके टेंशन करेंगे कि इतना खर्चा क्यों किया। आप खर्चे के बारे में तभी सोचेंगे जब आपके पास लिमिटेड अमाउंट ऑफ मनी है, राइट। तो अगर आप लिमिटेड अमाउंट ऑफ मनी में जो इमोशन वाइब्रेट कर रहे हैं लेके, जो आपका फ्रीक्वेंसी है उसमें वाइब्रेट करेंगे, तो आपके पास लिमिटेड अमाउंट ऑफ मनी ही रहेगा। तो आपका जो व्हील ऑफ फॉर्चून है, जो आपके लिए ब्रह्मांड से प्लान्ड है, जो अबंडेंस का है, उस एनर्जी में आपके पास ये एंग्जाइटी और स्ट्रेस नहीं है। तो इसके लिए मैं आपको सोल्यूशन भी बताऊंगी बाय द एंड ऑफ द वीडियो कि आप उसको रिप्लेस कैसे कर सकते हैं इन विद द राइट अफर्मेशंस। बिकॉज अफर्मेशन प्रैक्टिस करने से बहुत ज़्यादा आपका माइंडसेट में चेंजेस आते हैं और वो आपको इम्पैक्ट करता है। नाउ आई एम गोइंग टू टेल यू व्हाट आर द 5 वेज इन विच यू कैन रिमूव दीज ब्लॉक्स। फर्स्ट ब्लॉक जो हमने बोला कि एक हैप्पी लाइफ लिव करने का, जिसमें कि 10 ऑफ कप्स का जो एनर्जी है, उसके लिए आपको थोड़ा सा पेशेंस चाहिए। सो फर्स्ट थिंग इज द पेशेंस कार्ड, यू हैव टू यू सी इट। पहला सोल्यूशन है पेशेंस। यू नीड टू बी मोर पेशेंट अबाउट योर फ्यूचर, यू नीड टू हैव मच मोर, यू शुड अंडरस्टैंड कि चीज़ें जिस स्पीड में हो रही है उसी स्पीड में होना ऑलरेडी डिस्टाइंड है। इट इज़ डिस्टाइंड टू मूव इन दिस पर्टिकुलर पेस, जिस पेस में ये मूव कर रहा है। तो यू हैव टू हैव द पेशेंस एंड अंडरस्टैंड जो आपके लिए लिखा है वो आपको मिलेगा, प्रोवाइडेड यू आर हैविंग द राइट अप्रोच एंड द राइट माइंड सेट, राइट। नेक्स्ट अबाउट द Knight of Cups energy, what is it, what is the solution? Next solution that we have, you have to get over a heartbreak, whatever has broken your heart in the past, उस हार्ट ब्रेक से आपको हीलिंग की ज़रूरत है। तो आपको हील करना होगा अपने इनर सेल्फ को, कि जो भी चीज़ें हैं जो पास्ट में हुआ है, जो आपके लिए सपोज वर्कआउट नहीं करा हो और आपका लाइफ डिफ़िकल्ट रहा है, क्योंकि लाइफ जो है वो सबके लिए डिफ़िकल्ट होता है कहीं ना कहीं, किसी के लिए थोड़ा सा कम होता है, किसी के लिए ज़्यादा होता है, बट हर कोई इंसान एक ना एक टाइम में वो चीज़ें फेस करती हैं। बट आप उससे आगे कैसे बढ़ते हो, वो अप्रोच आपका फ्यूचर डिसाइड करता है। तो पास्ट एनर्जी से आपको मूव करना है, पास्ट में जो आपको हर्ट हुआ है, जो आपका दिल टूटा है, उससे आपको मूव करके यू हैव टू मूव टूवर्ड्स एन एनर्जी ऑफ द फ्यूचर wherein you are moving with an energy of more wisdom, more maturity, more understanding about what makes you happy, and you have to fill your own cup with happiness. So yes, that is one thing. My cat. Next I will tell you that if you have had issues, से आपके पेरेंट्स के साथ कोई इशू रहा हो या फैमिली मेम्बर्स के साथ हो या किसी पार्टनर के साथ हो या कोई भी पर्सन वर्क प्लेस में हो जिनको आपको जो देना था वो नहीं दिया उन्होंने, या आपका हक का कुछ आपको मिला नहीं और ग्रोथ आपका रोका गया पास्ट में, उसका सोल्यूशन आपके लिए क्या रहेगा? उसका सोल्यूशन के लिए आ रहा है लवर। तो आप फोकस करें अपने प्रेम पे, अपने प्यार पे। फोकस ऑन द पर्सन यू लव, on your partner more. Focus more on the thing that is working out for you. It's basically the energy of love. Focus on the energy of love. So it can be your person, your special person, yourself,
एंड ऑल्सो द थिंग्स दैट यू लव टू डू. तो वो जो पास्ट में आपके हित में या अपने आपके हक में जो चीज़ें नहीं हुई हैं उसको आप फॉरगेट करें. सो इट्स इंपॉर्टेंट दैट यू लेट गो ऑफ ऑल ऑफ द थिंग दैट डिड नॉट वर्क आउट for you on your favor, because full moon is an amazing time for making that happen. Full moon is the time to let go. जो भी चीज़ें places things आपके लिए वर्कआउट नहीं कर रहा है और आपके हाईएस्ट सेल्फ को पर्पस के लिए नहीं वर्क करता है, just let that go, right? And I saw 1111 on the screen, which was a confirmation. Then for the hanged man, जो पर्सपेक्टिव आपको चेंज करने की ज़रूरत है, वो कैसा पर्सपेक्टिव आपको लाने की ज़रूरत है, what is the solution on that? I'm going to tell you that. You are asked to see growth. You are asked to see things with the energy of the Empress. तो Empress का energy जो है, again it is filled with lot of love and lot of abundance, lot of happiness, lot of abundance. So you are supposed to understand that you are the master of your life and you create your life. So understand that there's a lot of growth coming in for you, lot of joys, growth, and I'll channel this message. I've even like written it down for you. Your future you have splendid victories in your future. There are splendid victories and outright blessings. So do not let the pain of the past hide you and stop you from the glory of your fabulous future. I was reading this book and this was also written there. So your excuses are your seducers, and your fears are your liars, your doubts are your thieves. So stop doubting yourself and don't make any more excuses about why you cannot move ahead in life and what you can't do, and don't lie to yourself. Yeah. So do not have any fears. Let go of the fears, because जितना आपके अंदर वो डर रहेगा, चाहे वो पैसों को लेके हो, आपका फ्यूचर को लेके हो, या आप जो भी करना चाहते हो उन चीज़ों को लेके हो, उसका मतलब ये है कि आप जो हो यूनिवर्स पे ट्रस्ट नहीं कर रहे हो और गॉड पे ट्रस्ट नहीं कर रहे हो. बिकॉज जितना आपके अंदर फेथ ज़्यादा होगा उतना आपके अंदर फियर कम हो जाएगा. तो जस्ट फिल दैट प्लेस विद लव एंड नो दैट यू आर मेंट फॉर दिस. यू विल हैव दिस. यू जस्ट हैव टू चेंज योर पर्सपेक्टिव एंड देयर इज़ अ लॉट ऑफ ग्रोथ कमिंग इन. हो सकता है एक नया वाओ नाइस. सो हो सकता है एक नया फैमिली मेम्बर जुड़ रहा है आपके फैमिली में. मे बी इट कैन बी अ फॉर्म ऑफ अ चाइल्ड, इट कैन बी अ फॉर्म ऑफ या इट्स अ वेरी फर्टाइल पीरियड. मे बी अ बेबी इज़ कमिंग एंड मे बी इट्स पेट ऑल्सो. मतलब एक किसी चीज़ का जुड़ना आपके फैमिली में हो सकता है. और जो आपका स्ट्रेस और फाइनेंसिस को लेके जो स्ट्रेस है उसको आप टोटली लेट गो कीजिए. आई एम ऑल्सो गोइंग टू गिव यू द अफर्मेशंस फॉर दैट, बिकॉज यू आर गोइंग टू हैव 9 of Pentacles, 10 of Pentacles actually. So there is lot of abundance and exciting time ahead for you, wherein you will have so much blessings in terms of finances, in terms of your material stability. Today is also the full moon, which is in Capricorn sign, and it is the earth element, and Pentacles जो होता है वो earth element होती है. तो it is speaking very clearly about the financial aspect of it, that do not worry about the finances at all, because it's all going to be very well taken care of. Now I'm going to tell you what are your strengths. ये जो आपका फ्यूचर है उस फ्यूचर सेल्फ में आपका स्ट्रेंथ्स क्या है, जो आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं उसमें आपके स्ट्रेंथ्स क्या है. तो स्ट्रेंथ्स ये है कि आपके पास इनफ मनी होगा जो आप इन्वेस्ट कर पाएंगे चीज़ों में, जो थिंग्स यू लव डूइंग एंड थिंग्स यू आर पैशनेट अबाउट. सो you will be very good in investing and you will be very good at doing things with money. And I am getting so much of Pentacles energy, money energy in this reading, and this money energy जो है वो earth element के साथ होता है. फुल मून भी earth element में आ रहा है, so that is amazing. And what are the weakness? आपके अंदर का weakness क्या हो सकता है? Weakness में ये है कि you might sometimes feel weak if you don't fight. Like you have to be strong and you have to stand your ground. वीकनेस ये हो सकता है कि आपसे कुछ लोग जेलस हो सकते हैं, आपसे लोग आपको लोग हो सकता है आपको अपने हक के लिए थोड़ा सा लड़ना पड़े. यू हैव टू स्टैंड स्ट्रॉन्ग फॉर व्हाट यू बिलीव इन, फॉर व्हाट यू वांट टू डू. दैट इज़ देयर, बिकॉज इफ़ यू डोंट डू दैट तो फिर क्या होगा कि आप जिस चीज़ों के लिए आप बॉर्न हो, जो आपको करना चाहिए वो आप नहीं कर पाएंगे क्योंकि आपको चीज़ें रुकेंगी. तो यू दैट इज़ अ वीकनेस. यू विल हैव टू स्टैंड योर ग्राउंड, यू हैव टू स्टैंड स्ट्रॉन्ग. ओके. एंड what is the benefit
वो आपका जो फ्यूचर सेल्फ है, अगर अभी आप अपने पर्सपेक्टिव को चेंज करते हो, आपका जो ड्रीम्स है उसके लिए आप अपने ड्रीम्स को परसू करेंगे, आपका जो मैनिफेस्ट करना चाहते हो उस चीज़ को पाने के लिए वो मैनिफेस्ट करेंगे, तो अभी आपको फ़ायदा क्या होगा मैं आपको बताती हूँ उस चीज़ से। जैसे कि व्हील ऑफ फॉर्चून जो है और जो ये हैप्पी मैरिज का भी कार्ड आ रहा है, इससे आपको अभी आपको कैसे बेनिफिट होगा, राइट नाउ हाउ विल बेनिफिट। Yeah, you will shine like a star. So right now you will be having a lot of star energy. You will feel a lot of peace inside you. It will be like वो जो होता है बहुत ज़्यादा स्टॉर्म के बाद एक पीस आना, दैट विल बी कमिंग फॉर यू. यू विल बी वेरी हैप्पी एंड यू विल बी एबल टू गिव a lot of value. तो make it value driven. You will be able to provide a lot of value and feel very happy. Next, I am going to take out a card telling you what is a message फ्रॉम योर फ्यूचर सेल्फ, जिसमें आपने व्हील ऑफ फॉर्चून मैनिफेस्ट करा है और 4 ऑफ वांड्स का एनर्जी, जो एक रीयूनियन है आपके ट्विन फ्लेम के साथ, मैरिज है आपके पार्टनर के साथ, हैप्पी मैरिज कार्ड है एंड लॉट ऑफ गुड लक एंड अबंडेंस है. तो उसमें आपके लिए क्या मैसेज है? आपके लिए मैसेज है कि कार्मिक पार्टनर्स और कार्मिक इन सब चीज़ों से आपको खुद को दूर रखना है, लस्ट से दूर रहना है, जो भी चीज़ें आपको इंस्टेंटली अट्रैक्ट करता है उससे दूर रहना है. सम थिंग्स दैट कैन समटाइम्स सेड्यूस करता है आपको, जो चीज़ें उन सारे सेडक्शन से यू हैव टू कीप योरसेल्फ आउट ऑफ दैट एंड यू शुड जस्ट बी एबल टू फोकस ऑन व्हाट मैटर्स द मोस्ट, राइट? एंड हाउ इज योर लव लाइफ गोइंग टू बी? एज आई कैन ऑलरेडी सी दिस 4 ऑफ wands, the 10 of cups. So love life wise, and there's a lover's card also. It's going to be amazing, but with one card I'll take the confirmation. Love life में ये है कि you'll have to focus on your own self also. आप खुद को अगर टोटली खो दोगे तो आप थोड़ा सैड फील कर सकते हो. So it's very important that you keep a balance in your मतलब पर्सनल ग्रोथ along with your married life. तो इफ़ यू जस्ट टोटली लेट गो ऑफ योर पर्सनल सेल्फ, अगर आप जो चीज़ें करके खुश होते हो वो चीज़ें ना करो, देन मे बी यू माइट हैव टू फील सैडनेस बिकॉज यू विल नॉट फील कंप्लीट एंड यू माइट गो थ्रू विड्रॉल वाला फेज. ये भी हो सकता है वो इसलिए क्योंकि इफ़ यू नॉट कनेक्टेड विद योर पर्पस एंड इफ यू नॉट टेकिंग योर वर्क सीरियसली, व्हाट हैपन्स इन द लॉन्ग टर्म इज यू फील inadequate and you don't feel satisfied. So to feel satisfied and happy you have to, and then there's a chariot card which is for victory. So that's what is showing. So take good rest and take good care of yourself, and this is the reading for today and I hope you liked it, and I'm going to upload a new reading very soon, and I hope that your life is filled with a lot of love and light and peace. Bye.